As you know that artificial intelligence is a study that how to make computer do things which at the moment people can do better. So we have learned a lot of things from Miss Meetu Batra as per her is practical and theoretical experience in the field of Python and machine learning. She is also having experience of cloud computing, Amazon server, Microsoft Azure, and to develop the server side web application, data protection, analysis, isolation issues, install and support LANs, WAN, network segments, internet, etc. Determine networking and system requirements, ensure network connectivity throughout a company, LAN, WAN manufacturer is a part of the technical, and she is such so much having a qualified in the terms of Python development, software applications, web application, and game development also. I welcome you once again, and we have learned lot of things from Miss Meetu Batra. So, ma'am, please over to you, and you can continue the session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, good morning, everyone. Hope you all are doing great and safe at your Good place. morning, ma'am. Today, on behalf of Solitaire Infosys, I welcome you all to the webinar on Python with machine learning. I am Neetu Batra, working as a software developer in Solitaire Infosys from last 8 years. I would like to thank college staff who encourage their students to join this webinar. Hope you all must have heard about the Solitaire Infosys. We are 10 years old organization and delivering more than 10,000 projects and 1257 plus clients. It is top MNC company, provide the app development and web development. We are expert in delivering high-end projects in different technologies like .NET, Laravel, Python, and also developing mobile application in Flutter, React Native. We are developing both the hybrid and native platform application. Recently we have added new department of Python and machine learning from last 2 years. We are currently doing many projects in Python and machine learning. So let's have a glimpse of some projects. Web scraping, it is basically data fetching app which fetches data through different sites like Copart, Manham, and IAAI to buy old cars, and it generates the Excel sheet of all the data fetched from these sites through AI and machine learning. This app is sell old cars, and binding the app provides the fetch data of all the bids generated. User will get the details of each bid generated of old cars. Or the another one is fitness app. It is a mobile application specially developed in Flutter. It is US project. In this application, we are training the model to act as a virtual trainer. As you know, all in pandemic, we most prefer to stay at home and work at home rather than going to gym. And this app is exactly what you need. It will provide you the virtual trainer who will guide you to do proper exercise. This app is created using TensorFlow and TensorLite, and this app is in competition of OneX app. So we have many more projects. So now let's start with the Python. So now I will share my screen. My screen is visible, sir. So now let's software language that is high end develop application, desktop application, internet application, and Python is developed by Google
उसको पाइथन को यूज करके लिखें तो उसमें कम लाइंस का कोड हम इसके अंदर यूज करते हैं. सो दीज आर द रीजंस व्हाई डेवलपर्स लव पाइथन, बिकॉज इट्स अ सिंपल, बिकॉज इसका जो सिंटेक्स है दैट इज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है. मतलब उसके अंदर कोई भी ज्यादा कर्ली ब्रेसेस या अदर सिंबल्स यूज नहीं होते हैं. कुछ इंग्लिश के वर्ड से रिलेटेड ही इसकी जो कोडिंग पार्ट है. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए हमें कोई लाइसेंस बाय करने की जरूरत नहीं है. इट इज कंपैटिबल विद ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स, विंडोज और iOS. It's object oriented and it has a loads of library. So this is the major difference between Python and other languages. तो libraries मीन्स कि जो भी हमें पैकेजेस यहाँ पे यूज करने होते हैं पाइथन में. सपोज मैंने फेस रिकॉग्नाइजेशन बनाना है, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए मुझे वहां पे क्या है, फेस रिकॉग्नाइजेशन के ऐप या उसको उसके लिए कोड करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ उसकी जो लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है हम सिर्फ उसको इंस्टॉल करते हैं एंड देन यू कैन यूज दैट. सो दिस इज द, अगर मैं पाइथन को किसी अदर लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करूं, सो इन सी लैंग्वेज इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन इन सी लैंग्वेज इंक्लूड स्टूडियो, देन इंट मेन, देन प्रिंट एफ से आप प्रिंट करते हो. बट इन जावा आपको पहले क्लास डिफाइन करनी पड़ती है, लाइक वो पब्लिक क्लास है या प्राइवेट क्लास है. बट इन पाइथन यू यूज ओनली प्रिंट एंड देन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो. देन जो भी आपने प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे लिखोगे. जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड. तो बेसिकली ये जो मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी वर्ड लिखते हो दैट इज अ स्ट्रिंग. सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स. So these are the top companies using Python: नोकिया, amazon, फेसबुक, यूट्यूब. ये कैसे यूज कर रही है इसको, जैसे यूट्यूब पे अभी सपोज क्या है कि आपका फर्स्ट पेज आता है, तो फर्स्ट पेज में अगर यूट्यूब ने ये फिक्स कर लिया कि उन्होंने 10% जो अपना मतलब कंटेंट दिखाना है वो गेमिंग से रिलेटेड है, बाकी का जो 80% है वो किसी अदर कंटेंट है, ठीक है. तो अभी कोई अदर, जैसे मैंने लॉग इन करा तो मेरा इंटरेस्ट मूवीज में है, तो मैं मूवीज से रिलेटेड ही कंटेंट वहां पे फाइंड करूंगी. बट फर्स्ट पेज पे मुझे कंटेंट कौन सा मिल रहा है, गेमिंग का, और अनदर जो 80% है मान लो वो न्यूज का है, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा वहां पे. तो फिर यूट्यूब एक फिक्स कंटेंट नहीं दिखाता, वो कहाँ से लर्न करता है, उसमें मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज हो रहा है. और मशीन लर्निंग में बैकएंड पे क्या यूज होता है, पाइथन. सो दैट्स व्हाई उसमें क्या हुआ कि अगर जब मैंने पहली बार यूट्यूब ओपन करा तो मैंने वहां पे कोई भी मूवी को सर्च करा, तो उसने जो भी मूवी वहां पे आपने सर्च करी है तो उसको आपका इंटरेस्ट पता चल गया, तो उसने आपकी हिस्ट्री से आपका इंटरेस्ट जो है वो लर्न कर लिया. अभी इन फ्यूचर वो भी जो भी आपको कंटेंट दिखाएगा, वो जो आपने पहली बार सर्च करा है वो आपकी बैक हिस्ट्री से लर्न करके आपको वही कंटेंट दिखा रहा है. तो ऐसे यूट्यूब के अंदर और भी बहुत ज्यादा डेटा है, तो उसमें वो चीज यूज हो रही है. अभी जैसे आप गूगल में गूगल की बात करो, अगर मैं गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करूं, जैसे व्हाट इज द बेस्ट कंपनी इन मोहाली, तो अभी मैंने ऐसे ही लिखा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो उसमें मैंने बेस्ट ही लिखा, तो आगे आपके पास सजेशन, आगे वो खुद ही बता देता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो. तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड गूगल रिकमेंडेशन. तो उसके अंदर भी पाइथन और मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है. जैसे आप कोई भी शॉपिंग साइट पे जाते हो, लाइक amazon पे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप वहां पे फोन सर्च कर रहे हो मान लो, तो आप जब फोन सर्च कर रहे हो तो नीचे आपको वो उससे रिलेटेड जो है उसके अंदर गैजेट्स होते हैं वो दिखाने लग जाता है कि अगर ये पर्सन फोन ले रहा है तो उसको फोन के साथ साथ और क्या चीजों की जरूरत है, लाइक उसको हेडफोन्स चाहिए, उसको साथ में क्या चाहिए कि फोन कवर चाहिए, चार्जर चाहिए. तो वो सारी चीजें वैसे उसको वहां पे सजेशन में आ जाती हैं. और अगर आप amazon से किसी अनदर वेबसाइट के ऊपर या अनदर कोई ऐप के ऊपर आप शॉपिंग ऐप पे स्विच करते हो, तो वहां पे भी आपको सेम प्रोडक्ट की एड्स आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज उसने आपका इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है. क्लियर. ऐसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग और पाइथन का यूज हो रहा है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पाइथन. वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक पर्पस के अंदर, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में, गेमिंग एंड 3D गेम्स के अंदर, डेटाबेस एसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. अभी मैं थोड़ा सा आपको मशीन लर्निंग का बताऊंगी, फिर नाउ
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रैक्टिकल सेशन। तो व्हाट इज मशीनिंग? सो हम इसमें मशीन को लर्न करवाते हैं कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए हम उसको एक एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेन करते हैं, देन वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। सो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि जैसे आपका कोई भी आर्टिफिशियल क्या होता है जो ह्यूमन मेड है, मतलब नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल थिंग्स को छोड़ के उसमें उसको क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल जो भी थिंग्स ह्यूमन डेवलप करता है उसको एज अ ह्यूमन या नेचर के साथ रिलेटेड ही हम बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोफिया रोबोट के बारे में, पता है आपको? देखा आपने उसका इंटरव्यू? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई। आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट यूज करते हो, amazon का अलेक्सा है, एप्पल के फोन में सीरी है, जिसको आप जो भी कमांड देते हो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। जो सोफिया है वो एक रोबोट है लाइक अ ह्यूमन, उसका नेचर है, तो उसमें वो ह्यूमन की तरह वर्क कर सकता है, मतलब बोल भी सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकता है एंड ऑल सारी चीजें हैं जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं। और उसमें क्या है कि वो आपका क्या है, ह्यूमन की तरह एक्सप्रेशन दे रहा है और उसके इंटरव्यूज भी हैं और उसको साउथ अरबिया की सिटीजनशिप भी मिल गई है। सो बेसिकली अगर आपने मशीन लर्निंग या एआई करना है तो उसके पहले आपको क्या आना चाहिए? पाइथन आना चाहिए। सो व्हाई मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट? सो इवैल्यूएशन ऑफ मशीन, बिकॉज मशीन जो है वो लर्न करती है आपकी बैक हिस्ट्री से। जो भी, जैसे आप पहली बार कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो, तो पहली बार आप एग्जाम देते हो तो आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा पार्ट आएगा एंड ऑल। बट इसके अंदर क्या है कि मशीन लर्निंग के अंदर आपका जो है हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि मशीन लर्निंग के थ्रू एल्गोरिदम क्या करता है, आपकी बैक हिस्ट्री से लर्न करता है। अभी जैसे आपने पहली बार टेस्ट दिया तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बट आप सेकंड टाइम टेस्ट देते हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल। तो ऐसे ही सेम थिंग अगर हम यहाँ पे मशीन के साथ भी करते हैं कि मशीन को एक बार आपने ट्रेन कर दिया और बार बार आप वही आउटपुट ले रहे हो, तो उस अपनी बैक हिस्ट्री से लर्न करके वो अच्छे से आपको जो है आउटपुट देगा जो हमें चाहिए। जैसे आप एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड को पहले उसका ब्रेन, उसका जो माइंड होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, तो हम उसको लर्न करवाते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, ये चेयर है, ये टेबल है। उसके बाद वो खुद से उसको आउटपुट देता है। अभी आपने तो सिर्फ यही बताया कि ए फॉर एप्पल होता है, अभी ए फॉर तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो कैसे लर्न करेगा? वो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस होगी, वो उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को लर्न करेगा। तो वही सेम थिंग हम मशीन लर्निंग में करते हैं। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं कि अगर हम इसको किसी अदर मतलब लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डेटा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, आप कंप्यूटर को देते हो और आपके पास क्या आती है? आउटपुट। बट इन मशीन लर्निंग आपके पास डेटा होता है, आउटपुट होती है, और इसमें क्या बनते हैं? प्रोग्राम्स। तो वो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं कि हम प्रोग्राम्स को क्या करते हैं यहाँ पे, एक मशीन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में डाल के हम उनसे वर्क कराते हैं। सो मशीन लर्निंग इज अ लाइक गार्डनिंग, जैसे उसमें सीड्स होते हैं एंड एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है? डेटा होता है। गार्डनर कौन होता है? यू। और उसमें क्या बनते हैं? प्लांट्स। और इसमें क्या बनते हैं? प्रोग्राम्स। Clear? So machine learning is like a gardening. So these are the application of machine learning. Retail के अंदर use हो रहा है, travel में, health care, finance, media, another different different चीजों में इसमें use हो रहा है. Now starts with the Python programming. So we do some practical work. So now if you have any query then you can ask. अगर किसी को कोई भी query है then आप पूछ सकते हो. तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगी दैट इज पाईचार्म, और पाइथन का जो वर्जन यूज हो रहा है दैट इज, अभी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का जो, दैट इज 3.9। बट मैं ये यूज कर रही हूँ 3.6 और 3.7 कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपको पाइथन को मशीन लर्निंग और एआई के अंदर यूज करना है तो आपको क्या है वहां पे जो 3.9 है उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं
जो अभी कंपैटिबल नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है 3.9 के साथ, तो इसलिए मैं 3.7 या 3.6 को प्रेफर करती हूँ। सो नाउ स्टार्ट विद, और ये पाईचार्म क्या है, इसका कम्युनिटी एडिशन है। जो पाइथन है दैट इज अ इंटरप्रेटर, और ये क्या है, आईडीई। वैसे आपके पास और भी बहुत सारे आईडी हैं, आप नॉर्मली पाइथन का आईडी भी यूज कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक है, जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्पाइडर है, एनाकोंडा है, तो आप उसमें कर सकते हो इसको। तभी मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगी, और साथ में आपको इसका, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पाइथन के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी अदर लैंग्वेज के साथ, तो ये कैसे डिफरेंट है और इसके अंदर क्या इजी है देन अदर लैंग्वेजेस। सो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ। सो यू हैव टू क्रिएट फाइल देन न्यू, और फाइल इसकी जो एक्सटेंशन होती है दैट इज, हम किसी भी नाम से एक्सटेंशन बना सकते हैं, डॉट पी वाई के नाम से इसकी एक्सटेंशन होती है। मैं इस फाइल का नाम कुछ भी रख लेती हूँ, सपोज मैंने रख दिया वेबिनार, देन ओके। सो हमारी एक वेबिनार नाम से यहाँ पे फाइल बन गई है। तो अभी मैंने जो आपको वहां पे एग्जांपल दी थी, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट देन ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने हेलो लिखा, देन राइट क्लिक, देन रन। अभी ये इंडेक्सिंग हो रही है। थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज पैकेजेस इसके वो हो रहे हैं। रन वेबिनार, एंड देन जो आपकी आउटपुट आएगी वो नीचे कंसोल में आएगी। ये देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो अगर मैंने सेम थिंग, अगर मैं सिंगल कोट्स में कर रही हूँ यहाँ पे, तो फिर भी आपके पास जो है आउटपुट है वो सेम आ रही है। क्लियर? तो ऐसे हम प्रिंट फंक्शन को इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ पाइथन वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो हमें अगर कुछ भी करना है मैथमेटिक फंक्शन, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं 2+2 डायरेक्ट आप लिखोगे प्रिंट के अंदर, और इस पे आप लिखोगे, देन आपके पास आउटपुट आ गई 4। और इसको हम सिंगल कोट्स से या डबल कोट्स में कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ, तो 2+2 आपके पास एज इट इज प्रिंट हो गया, बिकॉज ये डबल कोट्स के अंदर है। और इसमें क्या है कि हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपके पास क्या आया कि 2+2 एज इट इज प्रिंट हो गया। तो 2+2 एज इट इज प्रिंट हो गया है, तो इसके अंदर क्या है कि हम जो डबल कोट्स में ले रहे हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। तो अगर आप डबल कोट्स के बिना लेते हो तो दैट इज अ इंटीजर वैल्यू। तो हमें इंटीजर में ही लेना है, बिकॉज हमने एज अ कैलकुलेटर वर्क कराना है। 4 - 2 करा मैंने, तो यहाँ पे रन कर रहे हैं हम, तो आपके पास आउटपुट आ गई 2। और अगर हमने मल्टीप्लाई करना है किसी को भी, तो देन 5 आके जो भी आपने मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे आप रन करोगे 5 - 2। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गई 1 10। 5 × 2 कितना हो गया? 10। क्लियर? समझ आ रहा है आप सबको? Yes, ma'am. क्लियर? नाउ अगर मैंने यहाँ पे सिंगल स्लैश से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज अ फ्लॉट वैल्यू, मींस पॉइंट्स में आएगी। और अगर हम यहाँ पे डबल स्लैश से डिवाइड करते हैं, तो आपकी जो आउटपुट आ रही है दैट इज ना इंटीजर वैल्यू। क्लियर? अभी यही चीज अगर मैंने यहाँ पे पावर प्रिंट करानी है, तो पावर प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर, देन डबल स्टार, उसके बाद जो भी आपको उसकी पावर चाहिए वो लिख दोगे। जैसे 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। तो आपके पास आउटपुट आ गई 36। समझ आया? और यही चीज अगर अदर लैंग्वेज में पहले
उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, देन आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ये देखो ये इजी है ना एज कम्पेयर टू अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज यस आती है तो आप मैम, कंपेयर करके यस देखो मैम, सी के साथ इसीलिए इसको, है ना। तो सी में आपको इसके लिए कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, बट इन पाइथन यू यूज ओनली इन वन लाइन। ठीक है, तो अगर मैंने यूजर से इनपुट लेके ये इनका सम कराना हो तो कैसे होगा? ए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देन यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। और जो मैंने ऊपर यो करवाया आपको उसको मैं एज अ कमेंट कर रही हूँ। पाइथन के अंदर हैश टैग से कमेंट होता है। क्लियर? देन नाउ मैं एक अनदर वेरिएबल ले रही हूँ इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, नाउ हम प्रिंट करा रहे हैं ए प्लस बी। रन कर रहे हो आप तो यहाँ पे देखो एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कोई भी फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट ए प्लस बी। तो हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, सेकेंड नंबर। तो 10 प्लस 10 कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 20। यहाँ पे कितना है? 10 10, बिकॉज एज अ स्ट्रिंग ले रहा है वो उसको। ठीक है, तो अगर मुझे इनपुट लेनी है एज अ इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। तो मैं रन कर रही हूँ यहाँ पे। इनपुट जो है वो डिफाइन कर दिया। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया आपको? क्लियर? तो अभी मैं आपको ना इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो वन बाय वन मैं सारे प्रोजेक्ट्स की पहले आपको वीडियो दिखाऊंगी, देन आपको लाइव सेशन हम इसी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आपको कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी में टेक्नोलॉजीज पे। क्लियर?
मैम वीडियो की वॉइस नहीं सुनाई दे रही। Ma'am, sound is not visible. हेलो मैम। हेलो।
तो आपको प्रोजेक्ट्स का पता चल गया होगा कि किस टाइप के होते हैं, तो अभी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट विद द, समझ आया आप सबको? यहाँ तक किसी कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क। प्रोजेक्ट्स का एंड ऑल सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी में हम कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो पाइथन के अंदर क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम उसको किस में लिखते हैं? डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर। सो नाउ है सारे सॉलिटेयर प्रिंट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे a इक्वल टू कुछ भी ले लिया, यहाँ पे मान लो मैंने सॉलिटेयर ही लिख दिया। कुछ लेटर्स कैपिटल ले लिए हैं, कुछ स्मॉल ले लिए हैं। तो अभी अगर यहाँ पे हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इसका जो स्टार्ट इंडेक्स होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगर पीछे से स्टार्ट करें तो ये -1 -2 ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने चेक करा कि हमें क्या करना है, a देन आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे और कौन सा आपने प्रिंट कराना है। मान लो मैंने 1 नंबर इंडेक्स को प्रिंट कराना है। सो नाउ रन दिस। तो 1 नंबर इंडेक्स पे क्या है? o, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0। एंड अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से। देन नाउ a -1 e प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हमने कोई भी स्लाइस प्रिंट करानी है तो a कहाँ से कहाँ तक? डबल कॉलन, स्टार्ट वैल्यू 1 है, एंड वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा? 1 से लेके 2 तक चलेगा। मतलब 3 क्यों है यहाँ पे मैंने लिखा? बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे -1 होता है, तो ये उससे एक पहले तक आपके पास प्रिंट होता है। क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर देन स्टार्ट वैल्यू देन एंड वैल्यू, उसके बाद -1 का स्टेप दे दोगे तो आपकी ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो रिवर्स में प्रिंट होगी। ये देखो ERI, तो रिवर्स में प्रिंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं। जैसे a डॉट, मुझे ये जो a में मैंने स्ट्रिंग दी है उसको अपर केसेस में चेंज करना है, तो a डॉट अपर, देन क्लिक करोगे तो आपके पास ये अपर केसेस में चेंज हो गया। देन नाउ हियर a डॉट लोअर, तो आपका ये लोअर केसेस में चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने यहाँ पे किसी को रिप्लेस करना है, किसी भी करेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो, पूरे के पूरे वर्ड को भी रिप्लेस सकते हो, किसको भी करना है रिप्लेस, तो a डॉट रिप्लेस, मैंने किसको रिप्लेस करना है? मान लो l को रिप्लेस करना है। किस से रिप्लेस करना है? z को। तो रन करोगे तो आपका जो i है l है वो किससे रिप्लेस हो गया? z से। क्लियर? सो ऐसे ये रिप्लेस मेथड वर्क करता है। यू नो एक चीज बता सकते हो आप कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव और नॉट? एनीवन? It is case sensitive, ma'am. यस। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या अगर होता है? जहाँ पे हमने स्मॉल दिया तो वहाँ पे स्मॉल ही यूज होगा, बिग लेटर्स को यूज नहीं कर सकते। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? यश। ओके। तो जैसे यश ने बताया तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर स्मॉल लेटर ले रहे हो, अभी जैसे मैंने स्मॉल एल लिखा तो उसने सिर्फ स्मॉल एल को ही रिप्लेस करा। क्लियर? नाउ अगर हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड मेथड क्या करता है? कोई भी इंडेक्स फाइंड करता है। तो जैसे मैंने एल का इंडेक्स फाइंड करना है, सो नाउ एल का इंडेक्स क्या है? 2, तो आपके पास 2 प्रिंट हो गया। और अगर आपको किसी भी उसको काउंट करना है तो काउंट मेथड यूज होता है कि ये करेक्टर स्ट्रिंग में आपकी कितनी बार प्रेजेंट है। तो आई काउंट कर मैम रहे हैं हम। यस, मैम हमने एल की जगह जेड प्रिंट करवाया तो एल का इंडेक्स 2 कैसे हो गया मैम? वो नई वैल्यू नहीं काउंट की करेगा मैम? आपका जो स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग है दैट इज आपकी जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैम जो चेंज तो रियल, हुआ है ना बाद में स्ट्रिंग मैम, जैसे आपने एल की जगह जेड हुआ है।
एल की जगह जेड को प्रिंट कराऊं तो वो एज इट इज है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होते हैं बिकॉज स्ट्रिंग इज म्यूटेबल। ये देखो क्लियर, इम्यूटेबल है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी वैसे की वैसी रहती है। क्लियर। तो अगर आप इसके करना चाहते हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, इस चीज को बी में करा दिया, और फिर आप अब बी के अंदर इसको फाइंड करो एल को, तो फिर आपके पास आएगा -1 इंडेक्स। ओके मैम। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो दीज आर द स्ट्रिंग मेथड्स। तो अभी मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि पाइथन और मशीन लर्निंग और इसके अंदर किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले तो हम किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में म्यूजिक प्लेयर, कोई भी गेमिंग के अंदर कार सेलिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक म्यूजिक प्लेयर जो पाइथन के अंदर डेवलप करा है उसको कैसे बनाया है वो उसके बारे में बता रही हूँ। ओपन विद ये, तो इसको बनाने के लिए टीके इंटर का यूज करा है। टीके इंटर क्या है, ग्राफिक के लिए लाइब्रेरी है। इसमें हम ऐसे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। टीके इंटर एक क्लास है, ये ऑलरेडी इसका कोड बना है, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है। मुटाजेन लाइब्रेरी है, मैं इसको रन कर रही हूँ। तो आपके पास ये म्यूजिक प्लेयर ओपन हो गया। जैसे एक वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है तो इसमें स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का है, पाउज का है। इसमें हम जो वॉइस है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉन्ग्स को जिनको हमने प्ले करना है। तो देख लेते हैं कहाँ पे पड़े हैं, ये रहे। ठीक है, तो मैंने दूसरा सॉन्ग भी ऐड कर देते हैं, 2 सॉन्ग्स ऐसे कुछ भी। तो अब आप इस पे क्लिक करके इसको प्ले करोगे तो आपको वैसे ही जैसे एक म्यूजिक प्लेयर वर्क करता है वैसे ही यहाँ पे उसकी करंट टाइम आ रहा है, टोटल लेंथ आ रही है, तो वैसे ही सॉन्ग आपका प्ले हो गया। इसको आप कम ज्यादा वॉइस हो रही है आपकी, म्यूट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो और पॉज कर सकते हो। क्लियर। ऐसे जितने भी सॉन्ग्स हैं, तो ये एक टीके इंटर में उसका मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो दिस इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये तो मैंने आपको कोड से रन करके दिखाई है, बट आप इसकी EXE फाइल भी बना के रख सकते हो, देन आप उसको इंस्टॉल करके देन आप यूज कर सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गेम। तो गेम है हमारे पास एलियन इन्वेजन। इसमें क्या है, एलियंस जैसे आपने मे बी उसमें देखी होगी गेम टीवी वगैरह में, ऐसे लूडो, चेस, मारियो, कोई भी गेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देन राइट क्लिक, रन। इसमें पाई गेम यूज करा है हमने, तो ये प्ले हो रही है। इसमें देखो एलियन इन्वेजन क्या लिखा है, एंटर एनी की बटन टू स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करने करेंगे इसको। इसके आपके 10 रुपीज है, इसके 20, इसके 30, और इसमें आपको रैंडम मॉड्यूल यूज करा है, मतलब कुछ भी अमाउंट मिलियंस को किल करना है। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। समझ आया। नाउ द नेक्स्ट इज, आपको ये दिखाया वैसे AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन लर्निंग के बाद आप कर सकते हो, जिसमें हम अपने वो, तो ऐसे ही मैंने अपना पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पे बना रखा है। जैसे आपके फोन में, एप्पल के फोन में
सीरी है उस टाइप का थोड़ा, ठीक है। और इसमें मैंने क्विज भी करा रखा है, तो मैं इसको रन कर रही हूँ, तो जो मैं इसको कमांड्स दूंगी वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। Who made you? What is my name? What is your job? Open Gmail. Open Facebook. What is Python? Send email. तो ईमेल देखो यहाँ पे रिसीव हो गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है उसका, इसके लिए SMTP यूज हो रहा है। मैं अगेन इसको रन कर रही हूँ। म्यूजिक। सिस्टम इंफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट। ओपन कैमरा।
What is the time? Where am I? Temperature. Play quiz. Technical quiz. C. A. A. C. 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 Okay, bye. Bye. Okay. So this is a acolyte, like a personal assistant, like Jarvis. आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें करवा सकते हो. अभी मैंने इतनी करवाई हैं, और भी बहुत चीजें हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वेब ब्राउजर, क्योंकि वो वेब ब्राउजर के साथ कर रहा है, टाइम, डेट, रैंडम मॉड्यूल. और इसमें जो मैंने आपको क्विज दिखाया है, वो क्विज का अलग से हमने एक इंपोर्ट कराई हुई है फाइल यहाँ पे, इंपोर्ट क्विज. तो उसके थ्रू हमारा जो ये है वर्क उसमें कर रहा है. सो ऐसे ये करवाई हुई है इंपोर्ट क्विज. तो क्विज का अलग से कोड बनाया हुआ है, उसमें हमने एक क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है. क्लियर? समझ आया आप सबको? यस मैम. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क. मैम गिटहब लिंक आपका, यस, गिटहब लिंक आपका मैम. गिटहब लिंक कंपनी का है. सो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस आई एम नॉट शेयरिंग. मैम यस, जो सब आप प्रोजेक्ट बताए मैम, उसका वीडियो. वो प्रोजेक्ट फिर उसके लिए आपको पहले पाइथन एंड ऑल आने चाहिए ना.
तभी वो मैं सब तो आपको आती प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कंपनी प्रोजेक्ट। सो तो मैम उसका वीडियो अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। so you can record। तो आपके पास वहाँ पे रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। Now the second next one is please mute your mic. Please mute your mic. Next is traffic sign recognition. So you know traffic sign, जैसे टेस्ला की कार्स आई हैं, तो कार्स को कैसे पता है कि कौन सा लेफ्ट टर्न है, कौन से जो साइंस हैं उनका क्या मीनिंग है, तो वो किसके थ्रू करते हैं रिकॉग्नाइज? ट्रैफिक साइंस। उसमें पहले हमने एक जो है वो बना रखा है मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम, जिसके थ्रू सारे ट्रैफिक साइन उसको लर्न करवाए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट आती है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें, अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करें हम, तो यहाँ पे मैंने सारी उसको एक एल्गोरिदम के थ्रू जो है सारा वो करवा रखा है ट्रेन। तो मल्टीपल इमेजेस ले रखे हैं हमने ट्रेन करने के लिए। तो पहले हमारा जो डेटा एल्गोरिदम को हम इंपोर्ट करते हैं फाइल्स को, लाइब्रेरीज को, देन हम अपने डेटा सेट को लोड करवाते हैं एंड उसको टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम अपना कुछ इनपुट देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो खुद से हमें क्या करता है, आउटपुट देता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दे रखा है। ये देखो, ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में यूज कर रखी हैं। ये मल्टीपल इमेजेस हैं। किसकी हैं? ट्रैफिक साइन की। जैसे ये है, हमें खुद को ही नहीं दिख रही है कि कौन से साइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, इतने ब्लर और हर एंगल से वो इमेज को ले रखा है ताकि वो कार को अच्छे से करवाया जाए। तो अभी ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है, तो यही चीज टेस्ला की जो कार्स हैं या वो ड्राइवरलेस कार्स हैं अदर, उनमें यूज हो रही है। तो अभी ये रन हो रहा है। जब तक ये शो हो रहा है तब तक मैं आपको सोफिया के बारे में जो आपको बता रही थी, उसका मैं आपको एक इंटरव्यू लाइव प्ले कर रही हूँ। इसको साउथ अरबिया की सिटीजनशिप भी मिल गई है।
हम ये थ्रू कर सकते हैं। उसमें कुछ वो आ रहा है ट्रेनिंग का। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको और गूगल के थ्रू दिखाती हूँ, तो यहाँ पे गूगल एक्सपेरिमेंट नाम से साइट, जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट मशीन लर्निंग के एआई के, देखो ये एक्सपेरिमेंट, और इसमें हम जो गेट स्टार्टेड, ऑडियो प्रोजेक्ट ले रही हूँ, इमेज प्रोजेक्ट भी है, ऑडियो भी है। तो मैं दो सैंपल्स यहाँ पे हूँ, एक तो मैं नॉइस की और दूसरा हम सॉन्ग कोई भी एक प्ले कर देंगे, उस पे करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, सो हेलो गाइस, आई एम नीतू फ्रॉम सॉलिड इन्फोसिस। सो ऐसे मैंने कुछ सैंपल्स ले लिए हैं अपनी वॉइस के। तो यहाँ पे हम पहले ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को अपने डेटा सेट के साथ। तो ये 20 सैंपल्स 20 सेकेंड्स का रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इस क्लास का बैकग्राउंड नॉइस है, दूसरी क्लास हम रख देते हैं कुछ भी, मान लो सॉन्ग, उसका नाम रख दिया। तो इसको मैं माइक से ले रही हूँ बिकॉज अपलोड करने के लिए फाइल नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ सॉन्ग प्ले कर देती हूँ अपने फोन के ऊपर, और उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो मैंने दोनों के सैंपल्स ले लिए हैं, 2 क्लासेस। ऐसे आप मल्टीपल वॉइसेस ले सकते हो, ट्रेन द मॉडल। तो अभी इसका कोड ऑलरेडी करा हुआ है, हमें सिर्फ मॉडल को क्या करना है, ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद हम यहाँ पे जब मैं अपनी वॉइस करूंगी या ये वाला सॉन्ग ही प्ले करूंगी, तो अपने आप वो रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि कौन सी किसकी आवाज है। ऐसे ही इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। अभी ये मॉडल ट्रेन हो रहा है। ड्यू टू इंटरनेट इसमें थोड़ा वो आ रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे आप ट्रेन करके बाद में एक्सपोर्ट यहाँ पे मॉडल पे कोई भी एक क्लास अपलोड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट आ जाएगी वहां पे। क्लियर? जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन है वहां पे आपके पास। क्लियर? और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। मैम यस। मैम ये जो सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंट किए थे मतलब पाइथन से, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद मैम कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब रियल लाइफ में यूज होने के लिए बन जाता है? तो EXE फाइल बनानी पड़ती है, तो आप EXE देन जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको एक राइट क्लिक कर आप क्लिक करते हो ना, जैसे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो ऐप को इंस्टॉल करते हो ना आप, तो वैसे ही आप इंस्टॉलेशन बना सकते हो उसको। जैसे आप VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करते हो या कुछ अदर अदर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वो वैसे हम उस पे भी करवा सकते हैं। बाकी उसको हम हार्डवेयर के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर भी हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो मैम वो कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना मैम जिससे डॉट पी नहीं, वाई। सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कोडिंग ही है। उसके थ्रू हम सेटअप फाइल होती है, उसको हम EXE फाइल में या किसी फाइल में करवा सकते हैं। कोडिंग ही करनी पड़ती है उसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपको एंड्रॉइड के साथ करना है तो एंड्रॉइड की API बनानी पड़ती है, वैसे ही हम उसको फिर API फाइल बनाते हैं वहां पे, वैसे होती है फिर एंड्रॉइड फोन में करने के लिए। तो वो कोडिंग पार्ट ही है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा कि आप सीधा पाइथन की फाइल को कन्वर्ट कर दो किसी उसमें। क्लियर? यस मैम। So, if you have any another query, then you can ask. ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, but due to the shortage of time, now I'm end the session. So please ask your queries. समझ आया आप सबको जो मैंने आज बताया आपको? यस मैम। Okay, okay, thank you so much. I will share the email ID. If you have any query, then आप यहाँ पे कर सकते हो. Sir, where is the chat box? ये रहो.
Hello. Hello, sir. Please allow me to send the message. So students, please note down this email ID. If you have any query, then you can send the message on this. I will again sharing email ID because one नहीं है आगे. Manisha Solitaire dot Manisha Solitaire @slinfy.com. मैम चैट में डाल दो एक बार आप। हाँ जी. ये नोट कर लो, अदरवाइज मैंने चैट बॉक्स में भी कर दिया है. मैम चैट में Okay. नहीं आया। कर दिया है मैंने सेंड. वैसे कितना है मेल आईडी में? मनीषा solitary@gmail.com। नाउ अभी मैंने सब सेंड कर दिया है, अभी चेक करो. मैम अभी भी नहीं आया। So sir, please share this email ID with everyone. मैम हो गया, मैं अब शो हो रहा आपकी। Okay, okay. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. Hello. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. रिक्लेम होस्ट करके मीटिंग एंड कर देना।